So in my last video, we had discussed how to draw the map of the future. In this video, we will discuss the mechanics of it. Starting with what are roots. When we are talking about roots, we are specifically talking about the polynomial roots. A root is a value. Let's say if x and y are connected, then what value of x makes y 0 is basically our root. So for example, if the function y equals to fx, the values for, let's say, fx equals to x square minus 4, x minus 2 and x plus 2 will be the way we'll split it, and then we'll get x equals to 2 and x equals to minus 2 as our roots. This can also be understood in terms of graph. When you draw the function fx, whenever the line intersects the x-axis, that means wherein the function goes to 0, then those value of x will be our roots. So like you will be thinking ki, if it's so simple to find a root, then why don't we just simply do it in this way ki just split kara bees mein, or just seeing from the graph. Well, the problem is that it is not you who has to do it every time. Maybe you want a computer to do it, and there are further problems such as the equations may be complex or the dimensions will be higher. We go in third dimension, fourth dimension, or if we need a numerical representation, like if you need a precision, so let's say, visually you can find x minus 2 and x plus 2. What if it goes on for decimals, right? And you need a precise value in a precise way, every time you can find a root. So that is where something called Newton-Raphson comes up. It works by when you take a guess. So let's say I didn't know it was converging at 2. I would have taken an initial guess, maybe let's say 2.5 or 3 even. So if you have, let's say, x square minus 4, you take 2x minus, so it won't be a minus, 2x, alright? And then you divide the function, original function, which is x square minus 4, by this new, which is 2x, right? This will give you a slope. So I'll show you directly, as you can see on the screen, if I have this line and I take that initial guess, you can see that it took a tangent, and wherever the tangent intersected the x point was a new guess. So this is an iterative process. What is iterative? That you move step by step. So the first step was you had xn, right, which was the first guess. You subtracted fx upon f dash x, which inched you closer towards the value. So maybe let's say if it was 2.5, the new guess could be, okay, here is where it could be tricky. It could go much like far ahead also. So maybe it would have gone to minus 3, depending on the shape of the function. But let's say in this case, for example, it is inching very closely because the tangent is always getting closer to the actual value. In which case, in just 2 to 3 steps, you have got your conversions to x equals to 2. Here I have to bring in something called the complex numbers. We already know what complex numbers are. So we have a number. So let's say if you have minus 2, the root of minus 2 is like traditionally when it's taught to high school students, it's basically taught you कि इसको imagine कर लो as minus 2i and plus 2i, where i represents under root minus 1. What you're basically doing is कि हमने ना एक नई axis बना दी है. So you have the real axis and the imaginary axis. You can even see on the screen. तो वो जो value है, वो एक complex value है, जिसको हम generally जैसे कहते हैं x plus iy. तो x उस value का real part है और y वो value का complex part है. ठीक है? तो जिससे एक complex numbers बनते हैं. तो हमें पता है जो real numbers होते हैं वो complex number का एक subset होते हैं. अगर एक बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर्स का सेट है. ये काफी कॉमन है अगर आपने कॉलेज में मैथमेटिक्स ली हुई थी. देन अगर हमें ये पता है तो हम न्यूटन रैफ्सन इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं. ऑफ कोर्स तुम्हें पता है fz होगा, f dash z होगा, और इस हिसाब से यू विल फाइंड योर आइटरेटिव प्रोसेस. बट बस डिफरेंस ये होगा, इसमें हम जैसे x के पास ही मूव कर रहे थे, इसमें ना जो हम इंचिंग करेंगे दैट विल बी क्लोजर इन द लाइक 2D प्लेन. जैसे अब आप देखते हो कि ये प्रोसेस धीरे धीरे आइटरेशन 1, आइटरेशन 2, आइटरेशन 3 ऐसे प्रोसीड कर रहा है. उसको पता चल गया कि हमने एक इनिशियल पॉइंट लिया और उस इनिशियल पॉइंट से इट कन्वर्ज्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, दैट वाज वेरी सिंपल. अब हम धीरे धीरे क्लोजर जा रहे हैं. हमने जो लैंडस्केप बनाया था वो कैसे बनाया था. तो अब fz इक्वल टू z³ है, मान लो f dash z किया और ऐसे तुमने फंक्शन बना लिया. ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया जो न्यू वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू का 2/3 है. तो बेसिकली तुम कितने परसेंट से क्लोजर जा रहे हो एक्चुअल वैल्यू के. क्योंकि देखो अगर तुम इस फॉर्मूला में देखो, अगर zn plus 1 equals to zn हो जाता है तो क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप आएगा ही नहीं, वो पॉइंट वहीं कट कर रह जाएगा. इसे अगर तुम एनर्जी डायनेमिक्स में समझो
जैसे मैंने ट्रैक्टर के बारे में बताया था पिछली वीडियो में कि वो जो बॉल के नीचे मार्बल चला गया है, दैट विल स्टे देयर अंटिल एक्टेड अपॉन, ठीक है। तो उसके लिए सबसे स्टेबल पोजीशन वो सबसे नीचे वाली होगी, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल इन दिस केसेस की फिक्स पॉइंट है उसका। अब देखो कन्वर्ट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एवरी पॉइंट से, ठीक है। तो मान लो हमने जैसे स्टार्ट किया था इससे और वो क्लोजिंग करता गया एक पॉइंट पे, ये अप्रोचेस अगर z कुछ 0 रूट होता तो वहां पे अप्रोच कर जाता, तो हमें फिक्स पॉइंट ऐसे मिल जाता। अब फिक्स पॉइंट में अब मान लो हमने स्टार्ट करा हर एक पॉइंट से, ठीक है। हर एक पॉइंट का हमने केस लिया, मान लो यहाँ पे गया और न्यूटन रैफसन से बता दिया कि अच्छा ये यहाँ पे जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया, अच्छा यहाँ से करते करते यहाँ पे चला गया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे करते करते यहाँ पे चला गया। सिंपली हमें समझ में आ गया कि हम हर एक बता सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से शुरू होकर कहाँ जाएगा, ये कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है। और अगर हम हर एक के लिए पता कर लें और हम ये कहते हैं कि अच्छा इस पॉइंट पे पहुंचे, अगर ये वाला यहाँ पे पहुंच रहा है जैसे रेड कलर कर देना, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे वाले पे पहुंचे उसको रेड कलर कर दो, जो भी पॉइंट इस वाले ट्रैक्टर पे पहुंचे उसे ग्रीन कलर कर दो, जो भी पॉइंट यहाँ पे पहुंचे उसको ऑरेंज कलर कर दो। वो सिंपली आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है। और आपको वही फिगर मिल गई जो हमने इनिशियली लैंडस्केप ऑफ फ्यूचर्स में देखी थी, ठीक है। अगर मैं ओरिजिनल वीडियो खोलूं जैसे हमने इसमें खोला था, अब मान लो मैं डैम्पिंग 0 कर देता हूँ, ये भी कर देते हैं 0, एक्चुअली डैम्पिंग 1 करनी पड़ेगी, वो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यू कैन प्ले अराउंड विद इट एंड यू विल गेट समथिंग क्वाइट सिमिलर, ठीक है। फनी राइट? तो ऐसे ही जब आप काम करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाउ दीज न्यूटन फ्रैक्टल्स आर फॉर्मिंग। दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूटन फ्रैक्टल। मतलब मैं जैसे पिछली वीडियो में दिखा रहा था कि आई कैन स्टार्ट फॉर एनी पॉइंट, ठीक है। ऐसे करते करते दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है। अब क्योंकि हमने जो इक्वेशन ली थी, मैं अभी भी डेल्टा गामा और ओमेगा का वैल्यू नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको बस अभी समझने की इतना जरूरत है कि जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था ना न्यूटन रैफसन का, Zn + 1 = Zn - Fz/F', हमने थोड़ा उसी को मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि सिस्टम्स में कभी ज्यादा इतने सिंपल नहीं होते। हमने भी बहुत सिंपल सिस्टम लिया था। अब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, डेल्टा मेरी डैम्पिंग है, तो जो Fz का पार्ट है उसमें मैंने डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज डैम्पिंग। तो उसकी बेसिस पे क्या डिफरेंस आता है, गामा फोर्सिंग एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो एडिशन में है, उसके साथ एक्सपोनेंशियल में एक और वैल्यू है ओमेगा जो कि फ्रीक्वेंसी है। तो बिफोर आई एक्सप्लेन इट टू यू, आई वुड एडवाइस कि तुम लोग इसे मतलब खुद एक्सप्लोर करो और समझने की कोशिश करो कि ये जो इक्वेशन है ये कैसे अफेक्ट हो रही है इसकी वैल्यू से। एंड देयरफॉर जब मैं इनको वैरी कर रहा होता हूँ तो ये वियर्ड से सिंबल्स कैसे आने लग जाते हैं, ओमेगा क्यों आने लगता है, थोड़ा इंट्यूटिवली सोचो इस बारे में। बाकी अभी आई ऑल्सो हैव माय ट्विटर अकाउंट, you can follow me wherein I post this stuff also, as well as a lot of things I share my perspective on. You can connect with me on my LinkedIn and yeah, let's see you